Assalamu alaikum, Huran. Thank you so much for joining this session. Walaikum assalam. Thank you so much for having me. It's my pleasure to have you on this session. Having these session is to get as much industry professionals on a platform and try to understand what sort of roadmap that they are following. Right now, you are working in UAE, specifically in Dubai, and working in social media and management thing. But I wanted to know how this story started. So I have multiple things to ask, and we can discuss about it. But मुझे थोड़ा सा बताएं कि how's life, how's everything? Tell me about yourself, and then we'll start the session. Okay, so my name is Zuren Azhar, as you know, but I started my journey way back in 2019, if I say so. I started working as a freelance designer, very small. That time I was in my university. So I was looking and applying for university. So that time I started learning a little bit about Photoshop, and then I think from that day onwards, I never stopped. And Mm, we're in 2025. And in while I was in my university, I got an offer from a marketing agency in Karachi, mm, where I worked 1.5 to 4 years. And that was basically the first step into the main industry as a designer. So I did my bachelor's in marketing, but my forte was always designing. I was always working as a designer in Pakistan, but working in an agency was more of a 360 role. mm, So I was working as a designer, but the team I was working with um, were more like my mentors, and they pushed me to learn more than just design. I remember one of my mentors, Ashraf Kareem, he always pushed me to say, एक दिन तुम्हें डिजाइनर से आगे भी बढ़ना है तुम जिंदगी भर डिजाइन नहीं कर सकते so which is a very big thing if I think about it now, and to be honest, in those 7 8 years mm, I have become a very different person. I am a designer, but I do take care of a lot of social media. I work in PR, and Dubai was a very big stepping stone in terms of industry, the opportunities. That's endless. But yeah, the work in Karachi was very competitive but calm because I was working in an agency. So agency atmospheres are always fast and fast-paced if we talk about any other company or industry. But when I moved to Dubai, I got an offer. I just applied randomly, mm, and that's just, I think, a miracle that I was in Pakistan when I got the offer. And still, the visas, as we know, as of today, the visas are still a problem. mm, Even at that time, 2 years back, the visas were still. So I didn't get my visa, even though I got the offer as a junior designer. So I was working as a senior designer in Pakistan, but when I got an opportunity here, it was of a junior designer. But that was even if the role was going like I was being a little um down as for what I was actually doing, mm, but in terms of the company, the name, I worked with Man City as a very big brand. I was taking care of their social media mm, for one of their experiences in Abu Dhabi. mm. So that was a big thing and a lot to learn. I learned a lot in that field, even if I was a junior as well. But yeah, moving was a big problem. I started working with them from November 2023 and I moved to Dubai in Feb. Mm. So the process was very long, very tiring. Obviously, I think I know and I understand a lot of people are still going through that process. And I guess I've known personal cases who have turned down offers because the visa is there's no luck. Mm. So right now I work as a social media and design exec. I take Perfect. care of Perfect. So a lot right of now, brands. a lot you have been through a lot of things, and now, mashallah, you are doing well, trying to cope up with things. Um, let's start from the very beginning because I think it's all started when you're doing your graduation, and graduation is one of the very
important part of your life, because it's not only about getting a degree or a paper that has your name and university name and saying that आपने इस चीज में graduation करी है, ठीक है. Mhm. If you go back, you have done your bachelor's from in BBA Human Resource from Sufa University, right? If I'm not wrong. So I've done my bachelor's in marketing Okay, from DHS of but it is BBA, right? Yes, BBA, correct. Okay. And So my major was marketing. perfect. So first of all, before we start the conversation, I think this is one of the main important topics. So sometimes when you do, not sometimes, like 99% जब आप BBA कह रहे होते हैं, so there is no chance of doing anything related to design. ठीक है. We will discuss that, but you enroll yourself in 2019. तो दो चीज़ है, एक तो आपका आधा बैचलर्स ऑलमोस्ट कोरोना में गुजरा होगा, और दूसरा ये कि why do you choose BBA marketing? Because throughout your overall experience, you didn't do any single job that is more related to your bachelor's. ठीक है. Mhm. But at what time do you realize कि नहीं यार BBA was the right thing, or it is something that you wanted to do कि ठीक है डिजाइन तो मैं कर ही रही हूँ, but let's take a degree in another direction. What was your thought process at that time? So when I started my university in Pakistan, I was brought up in Saudi. So Mm, my life there was I started working there before I started my university in Pakistan. mm, So that job was more about managing a lot of marketing, um, what do I say? Marketing materials, I would say, because it was not about digital marketing, it was more about print media. So conventional that was marketing. my first step, correct. It was my first step into the world of marketing, where I was learning and looking at how design was being done. And when I started designing, it was only for my little business which I was working in Pakistan for, which was like printing, because I learned that from my job in Saudi. Mm, तो उस चीज को टेक फॉरवर्ड करके आई थॉट कि I should just do some printing t-shirts and cards and mugs at that time 2019 if I'm saying so. Nobody was doing it as a small scale business. Everybody who were doing it in Karachi was very expensive. I ठीक है. just started that as a side hobby, Mm, and to do that I started learning design. ठीक है. But when I got my I always knew कि मुझे marketing में BBA was a very general step if I so if you get into BBA, you have option to do finance, HR, marketing, um, accounts. So I had multiple options, supply chain. But in the end, when I started working in an agency, I automatically realized that I only have to go in marketing because that's where the passion is taking me to. Design was a very small part of marketing, I would say, when I was learning in university. But I think I've done great projects. I was always in those societies who would require design, who would be taking care of the social media, the in venue designs. Most of our marketing projects revolved around a lot of video editing, packaging design. So I think I got great teachers as well who were pushing us towards this side, and I could try and work on these things. Lekin major majorly when I realized that I want to do BBA in marketing was when I was already working in the agency. Um, But and then when I was why didn't you, like, for example, what I wanted to understand is a lot of time people usually आपकी बात से इट्स वेरी सिंपल. यू ठीक है, आपको लगता है कि आपको मार्केटिंग करनी चाहिए, आप मार्केटिंग कर रही हैं, आपको डिजाइन में शौक था और आप डिजाइन भी साथ साथ कर रही थी. बट फॉर नॉर्मल पीपल ऐसा होता नहीं है. ठीक है, दे यूजली थिंक कि हम जिस चीज के अंदर बैचलर्स कर रहे हैं हम थ्रू आउट देयर लाइफ वही काम करेंगे. ठीक है. एंड यू आर वन ऑफ द वेरी स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स जो मेरे पास है अभी, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप सऊदीया में थे. ठीक है, यू वर डूइंग वेरी वेल, एंड देन आई एम प्रीटी मच श्योर आप अपनी ग्रेजुएशन के लिए यहाँ पर है. ठीक है. Why don't you think यार going back to Saudi was the right thing? Because you know the industry, आप वहाँ पे पहले से काम कर रही थी, तो आप वहाँ वापस क्यों नहीं गए? नंबर वन. नंबर सेकंड, लोगों को ये पता ही नहीं होता कि जरूरी नहीं है कि अगर आप बैचलर्स करें, बैचलर्स की डिग्री जस्ट टू गिव यू
एनी प्रोफेशनल डिग्री के भाई ठीक है मैंने ये करना है, उसमें कोई ये नहीं लिखा होता कि आपको इसके अलावा जॉब नहीं मिल सकती, आप इसके अलावा कोई काम नहीं कर सकते, ठीक है। सो यस, इन योर केस वो दोनों चीज़ें सही रही, आपको लगा कि यार मार्केटिंग वो चीज़ है जो मुझे करनी चाहिए, बट डिज़ाइन मुझे पसंद है, तो आई थिंक वो 4 साल के अंदर आपने उसको ओवरलैप करके डिसाइड कर लिया होगा कि ठीक है यार, नाउ डिज़ाइन इज समथिंग दैट आई वांटेड टू ग्रो। सही है। आई नो दैट यू आर वर्किंग इन सऊदी बिफोर you start your bachelor's, but Saudi market and Pakistani market is totally different. So I wanted to know, yaar, how was the first experience? Like, how was your first job experience in Karachi? Because I'm pretty much sure कि आप कितना भी कुछ कर लें, कितना भी कुछ हासिल कर लें, आपको अपनी पहली जॉब बिल्कुल याद रहती है, क्योंकि at that time आपको भी नहीं पता होता कि क्या करना है, किस तरीके से करना है, और यूजली 90% लोग बस ट्राई कर रहे होते हैं, ठीक है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि यूनिवर्सिटी आपको कुछ नहीं सिखाती, बट यस, यूनिवर्सिटी आपको बहुत ही बेस लेवल पे चीज़ें सिखाती है, जो कि अगर मैं पाकिस्तान के हर बीबीए स्टूडेंट को उठाऊंगा तो सबको एक जैसी चीज़ आती है, ठीक है। और अगर सभी एक साथ ग्रेजुएट हो रहे हैं तो सबके अंदर ऐसा अलग है ही क्या, ठीक है। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि वन वे और अनदर आपके इंटरव्यू में पहली मरतबा पूछा जरूर गया होगा कि आप बीबीए करनी है, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग करनी क्यों है। यू कैन गो इनटू बैंक, यू कैन गो इनटू मार्केटिंग, कन्वेंशनल, डिजिटल, कुछ भी कर सकती थी। और जिस टाइम फ्रेम पे आपने करा उस टाइम फ्रेम पे तो हर दूसरा बंदा जो है वो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स या डिजिटल मार्केटिंग में जा रहा था। तो क्योंकि 2020-21 में कोरोना के टाइम पे पाकिस्तान वाज लाइक एवरीवन वाज थिंकिंग लाइक कि हर कोई डिजिटल मार्केटिंग कर सकता है, कोई भी हम्म। दुकान लेके बैठ जाए और वो सोच रहा था कि ही और शी इज अ डिजिटल मार्केटर, ठीक है। बट व्हाई हाउ वाज योर एक्सपीरियंस व्हेन यू गो इनटू द फर्स्ट जॉब, किस तरीके से रहा? एनी टिप्स एंड ट्रिक्स जो आप अब की हुरैन उस टाइम वाली हुरैन को बताना चाहेगी कि यार ये चीजें कर लेती तो आप बहुत बेहतर होते। So how was your experience over there? वन थिंग जो आपने जो पहला सवाल था विच वाज के कि हम मार्केटिंग करते हैं एंड देन बीबीए करते हैं एंड देन वी रियलाइज के हमें बस मार्केटिंग में ही जाना है. Hmm. I disagree with it very big time because I've, as you said, कि I'm one of the examples कि मैंने BBA किया and marketing में किया, which was a very big, vast, like a field where you get so many things to do. But then I chose a subfield which was design inside it. आई पर्सनली बिलीव कि इसलिए मार्केटिंग के अंदर की सब फील्ड भी नहीं कहेंगे, क्योंकि आई एम प्रीटी मशहूर कि वो ठीक है, आप मार्केटिंग मटेरियल्स बना रहे होते हैं, चाहिए। हम्म. बट यही वाली बात है कि मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि आपकी वाली सिचुएशन में प्लस पॉइंट यह रहता है कि आप दुनिया में किसी भी जगह किसी भी मीडियम पे डिजाइन कर रहे होंगे तो कोई ना कोई मार्केटिंग टीम होगी जो उसको मार्केट करेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल. आप डिजाइन करेंगे और खुद जाके उसको पैम्फलेट प्रिंट करा के छपाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो वो बात तो ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक चीज तो लोगों को बहुत क्लियर रखनी चाहिए कि भाई बैचलर्स और नौकरी बहुत अलग अलग चीज है। बहुत अलग है, सही है। बिल्कुल बहुत अलग है. बट व्हाई डू यू थिंक यार ग्राफिक डिजाइन, क्योंकि देखो ये भी चीज होती है कि आपको ना ओवरऑल आप 4 साल में बैचलर्स कर रहे हैं, आपके सारे 95% students are into not into design, they are more हम्म. into marketing and doing this and that, ठीक है। they are also getting jobs in marketing, I'm assuming कि ऐसा बिल्कुल. ही वो होगा, ठीक है। but why do you think यार नहीं graphic design is something जिससे मैं that I can make a career out of it, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ग्राफिक डिजाइनर इज नॉट अ वाइट कॉलर जॉब टिल द डेट, ठीक है। आप बेशक बिल्कुल. कितने भी अच्छे डिजाइनर क्यों ना हो, ठीक है, हम्म. आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि यार आप ग्राफिक डिजाइनर हो तो वो आपको बहुत ही कोई रिस्पेक्टेबल नजर से देखेगा, ठीक है। बिल्कुल. ऑल दो कि आप पूरी की पूरी 100 लोगों की टीम मैनेज क्यों ना कर रहे हो, हम्म. ठीक है। मैनेजर, मार्केटिंग, ये चीजें थोड़ी सी फैसिनेटिंग होती हैं। अगर नंबर्स की बात की जाए तो आई थिंक एक डिजाइनर शायद एक फ्रीलांसर और एक डिजाइनर एक बीबीए ग्रेजुएट से बहुत ज्यादा कमाता होगा, बट मार्केट उसको उस तरीके से देखती नहीं है पाकिस्तान में, ठीक है। सो हाउ डू यू व्हाई डू व्हेन यू रियलाइज कि नहीं यार डिजाइन इज समथिंग दैट आई कैन मेक अ लिविंग आउट ऑफ इट? So even if जब मुझे my first job was not a very high paying job because obviously I didn't have any experience. When I started working there, I started learning a lot about it. Even then, obviously, my university was teaching me something else and I was working in something. When I started working there, I realized working with very different brands internationally that being a designer is not a very small job internationally, if you see so.
पाकिस्तान में हम सोचते हैं कि एक ग्राफिक डिजाइनर का काम क्या ही होता है, सोशल मीडिया पोस्ट बनाना, रोल अप्स बना देना, फ्लायर्स बना देना. But if you look at it into a very big market, which is out of Pakistan, even when I used to work for clients who were from abroad, we were working for F&B clients from UK, from Dubai, from US. So unki jo way of, we were not just doing social media for them. We were doing in-venue activation designs. We were doing website designs, a lot of things which pushed me to learn and apply abroad. So this was also one of the very big reasons why I wanted to get out of into the international markets was to learn more and get out of this myth where designers can only change the color of something, increase the size of the font. यही हमारी job है. Which is a typical sense in Pakistan. अगर अभी भी हम किसी डिजाइनर को हायर करना चाहते हैं तो हमारा पहला सवाल ये होता है कि आपको वीडियो एडिटिंग भी आनी चाहिए, 3D भी आना चाहिए, कैनवा भी चलाना आना चाहिए, पोस्टिंग्स भी आप थोड़ी कर लें और कॉपी कैप्शन भी खुद. So we don't have a separate role for a graphic designer. And it's not just a graphic designer, it's a brand designer. When I moved to Dubai, I learned that design is such a big field because I didn't have the privilege to study design. So that was a very big drawback for me. That's what I still think till date. कि अगर मैंने अपना bachelor's design में किया होता, I would have maybe been 10% better than what I am today. But ठीक है. when I came here, then I realized a brand designer is a different person, a social media and digital designer is a different person. हाँ, A, मतलब a ये तो person बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये इसमें तो कोई बहुत पॉइंट नहीं बड़ा है और क्योंकि ये हम पाकिस्तान की मार्केट में समझते नहीं है. नहीं. सो हाउ आई थिंक इज कि आप ये अज्यूम कर भी नहीं सकते. क्यों? Uh, जब आप एज अ वेंडर काम कर रहे होते हैं ना, हम्म. ठीक है, तो आप फ्रंट फेस नहीं होते. ठीक है. बिल्कुल. अब फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में जितनी भी एजेंसीज हैं, ठीक है, जो पाकिस्तान की बिग एजेंसीज की बात नहीं कह रहा क्योंकि यू यू हैव नॉट बीन टू एजेंसी वाली थिंग कि भाई ओगिलवी मैनहट्टन साची एंड साची, ठीक है, उनकी बात अलग है जो कि बिग जाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं, वो कंपनी वो एजेंसीज ही बहुत बड़ी हैं. अगर इस सेक्टर को हटा दें तो उसके अलावा जितनी भी सो कॉल्ड एजेंसीज हैं अपने आप को आईटी फर्म्स कहती हैं, दे आर बेसिकली द थर्ड पार्टी वेंडर्स, ठीक है, जो बाहर से हम्म. काम पकड़ते हैं और वो काम करते हैं. अच्छा, अब इसमें एक और चीज ये होती है कि विच पे स्केल दैट यू आर वर्किंग इन. जब आप कोई काम इस बेहाफ पे कैप्चर कर रहे होते हैं कि मैं आपको दुनिया से सबसे कम करके दूंगा, ठीक है, तो आपका जो मेन पूरा पाइपलाइन का वो होता है ना, वे फॉरवर्ड, वो ये होता है कि यार ये बिल्कुल. काम है, इसको जितना जल्दी करके दे सकते हो उतना जल्दी करके. ठीक है. बिल्कुल. एंड आई एम नॉट सेइंग कि पूरी दुनिया में हर इंसान को डिजाइन पता है. ठीक है. आई हैव बीन बिल्कुल. वर्किंग इन द इंडस्ट्री फॉर मोर देन 8 years नाउ. ठीक है. एंड बीइंग वर्किंग फॉर इंटरनेशनल क्लाइंट, फिर वो कहीं के भी हो, यू नीड टू रियलाइज कि वो मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है. अब मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि इंटरनेशनली किसी क्लाइंट के लिए डायरेक्टली काम करना और किसी यूके में बैठे हुए एक बंदे के लिए जिसने कल ही बैठ के उठा और कल ही उसने सोचा कि हम्म. यार अपवर्क पे मैं कोई रिक्वेस्ट डाल देता हूँ कि यार मुझे कोई बंदा 30 पोस्ट बना दे. ठीक है. हम्म. या क्योंकि क्योंकि ना उसमें भी फर्क है. अब एक बंदा अपने ही 100-150 लोगों की कम्युनिटी के लिए चीजें बनवा रहा है और एक बंदा नेशनली काम कर रहा है. ठीक है. सो ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है. ये इसमें कभी भी आपको एक्सपेक्ट करना भी नहीं चाहिए अनटिल और अनलेस कि आप एजेंसी साइड को वो टच करें. ठीक है. बिल्कुल. बट यू नीड टू रियलाइज कि ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी कि जब आप अंग्रेज के लिए काम करते हैं, ठीक है, तो आपको एटलीस्ट समझ में आता है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट जस्ट मेकिंग, ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि मुझे डिजाइन करना है. सही है. इट्स मोर लाइक अबाउट कि वो आपको थोड़ी सी लुक एंड फील बताते हैं, आपको पता होता है कि यार ये मेरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. सही. सो यू ग्रेजुएटेड इन 23, ठीक है, एंड यू ऑलमोस्ट invested 2.5 to 3 years in Pakistani industry before you move to UAE. ठीक है. Yeah. अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि यार थ्रू आउट योर ओवरऑल एक्सपीरियंस इन पाकिस्तान, क्योंकि अभी मैं इसको वर्सेस कंपेयर करेंगे कि यूएई में कैसा है, बट ऑब्वियसली आपने पाकिस्तानी मार्केट में काम करा है, तो आपको क्या लगता है कि यार डिजाइनर्स
आपको ऐसी क्या चीज करनी चाहिए अपनी तरफ से कि वो डिजाइन को थोड़ा सा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इसमें आपको ना अपनी वर्थ खुद बनानी पड़ती। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ मसला ये है कि आई से कि डिजाइन इज अ इटरेशन ऑफ एन इटरेशन ऑफ एन इटरेशन। दुनिया का कोई भी डिजाइन ओरिजिनल नहीं है, वो कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड है, ठीक है। बट आपको बीइंग अ डिजाइनर यू नीड टू बिकम अ सेल्समैन। आपको अपने आप को बेचना आना चाहिए कि भाई ठीक है, मैं ये चीज बना रहा हूँ, इसकी ये इंपॉर्टेंस है, ये इतनी देर में बन सकती नहीं बन सकती। समटाइम्स मेक अ डिजाइन इन 5 मिनट्स डोंट गिव यू अ प्लेजर ऑफ सेइंग कि अरे बहुत क्रिएटिव है, ठीक है। आपको मार्केट के हिसाब से भी देखना होता है। सो व्हाट डू यू थिंक व्हाट वाज द राइट 3-4 टिप्स दैट यू वांटेड टू गिव कि अगर कोई बंदा 2025 में डिजाइन स्टार्ट करता है तो उसको अपनी इवेंचुअल ग्रोथ में ये पॉइंटर्स हैं जो अपने इनका इंक्लूड करने चाहिए, जो वो आगे जाके सीख सकता है या उसको सही लगेगा, आसानी होगी चीजों में। So, if I say so myself, and if this is what advice I would give to myself from 2019-year-old, I think don't doubt yourself too much. Because जब मैं पाकिस्तानी मार्केट में काम करती थी, and I know how people manipulate designers, not in a bad sense always. I've worked with great people, I've worked with uh, bad people also. But you need to keep learning. First things first. You need to keep learning. Design and learning never stops. अगर आज आप सोशल मीडिया डिजाइन कर रहे हैं तो कल ट्रेंड्स चेंज हो जाते हैं. कीप अप विद द ट्रेंड्स. यू नीड टू बी अपस्किल. एआई अब इन्वॉल्व हो गया है बहुत ज्यादा. स्टार्ट लर्निंग हाउ यू कैन बी useful. Those can be useful for your work. हम्म, And then make a statement in terms of कि अगर आपके पास कोई client आ रहा है and because I used to do this a lot कि किसी ने मुझे बोला मेरे पास बिल्कुल बजट नहीं है. Me being me, I wouldn't say oh पैसे बढ़ा दें प्लीज देख लें इतना टाइम लगता है इतनी मेहनत लगती है. नो, I would always agree to it because I didn't know and I didn't have somebody to tell me how I should market myself. Now when I am like 8 years ahead of what I was working in the start, I feel once you start negotiating a lot, you just keep negotiating. हम्म, You need to make and talk and sell yourself as this is what I give you, and these are what you will get the benefits in terms of why did you even think of coming to me. आपको अपनी worth पता होनी चाहिए. आपको ये पता होना चाहिए कि the work that you are doing is different than what everybody else is. And हम्म, then what is your USP? For me, I always had a USP of time. My revert back time was always the most like useful for anybody. जिसका urgent काम होगा वो हो जाएगा, जिसकी जो timeline होगी वो हो जाएगी. And I used to sell it. I still do. हम्म, I say कि आपका urgent project है, I can do it. And then but I charge this much. So then you need to have a selling point and then you need to be very stern about it. We don't do this in Pakistan. पाकिस्तान में हमें कोई बोलता है कि यार बजट कम है, देख लो हो जाएगा, नहीं हुआ कोई बात नहीं कर देते हैं. But that means you're just ready, you're being ready to be manipulated. that is one of the main important issues that people usually face, क्योंकि yes एक आपको इकोनॉमिकल फैक्टर्स इसमें बहुत बड़ा पॉइंट होता है। बिल्कुल. अगर आपके पास पता है कि क्योंकि इन पाकिस्तान इट्स नॉट लाइक क्लाइंट वांट्स द बेस्ट वर्क ऑलवेज, ठीक है। दे जस्ट हम्म. नीड द जॉब डन, ठीक है। और वो जो जॉब डन वाली चीज होती है ना, सो इंडस्ट्री वर्क्स इन दैट वे कि अब हर बंदे को पता है कि ठीक है मैं 5,000 में काम करा सकता हूँ, मैं 3,000 में काम करा सकता हूँ, ठीक है। सो इधर इट्स नाउ इट्स अप टू यू कि आप अपनी पर्सनैलिटी ऐसे बनाए। और लोगों का ऐसा लगता है बिल्कुल. ठीक है शुरू में लर्निंग पर्पस के लिए आप छोटे क्लाइंट्स के साथ इस तरीके से काम कर रहे हैं, या यू डोंट गो फॉर बिग बजट्स क्योंकि आप खुद भी सीख रहे होते हैं। बट हम्म. हमारे यहाँ ये हमारे यहाँ पोर्टफोलियो को या हमारे यहाँ अपने आप को सेल करना इसलिए नहीं सिखाया जाता कि अगर फॉर एग्जाम्पल you have done x number of amount x hours of work on some project, आपको पता होना चाहिए कि आपको उसको केस स्टडी या शोकेस कैसे करना है, ठीक है। बिल्कुल. बिकॉज एवरी वन कम्स टू यू, दिस इज वॉट आई थिंक इज के आई नो देर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म इंटरनेशनली जो कि 10 रील बनाने के लिए
$1,000 चार्ज करते हैं, एंड एट द बैक हैंड शायद वो भी इंडिया पाकिस्तान में से किसी बंदों से काम बिल्कुल कराते होंगे। ऐसे, दिस इज हाउ ठीक द है, इंडस्ट्री इज बट वर्किंग। बट फॉर एग्जाम्पल द फ्रंट फेस ऑफ द प्रोफाइल नोज हाउ टू सेल देमसेल्फ। जब आप खुद समझ जाएंगे कि आपको सेल कैसा करना है, तो आई थिंक यू कैन रेट योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू वॉट करेक्ट। यू थिंक इज राइट। ठीक है, ओके। अच्छा, एक एक और चीज मुझे बताइएगा कि सो यू मूव टू यूएई एंड इट वाज अ लक। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस दैट साइड। आपको क्या लगता है कि इट्स ऑलवेज लक ओवर टैलेंट? ठीक है, नो। और so what I think is कि when people ask me like what should be the what should be the right way to move forward, हम पाकिस्तान से बाहर कैसे निकले, I personally believe it's not about only one day। ठीक है, आप मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ, जैसे आप मोटिवेट तो एक दिन रह सकते हैं, लेकिन अगर आपको कामयाब होना है तो आपको डिसिप्लिन होना पड़ता है। ठीक है, इसी तरीके से आई डोंट सी कि आपने सिर्फ अप्लाई करा और उन्होंने हायर कर लिया। आई थिंक आप कोई चीज पिछले कुछ सालों से थोड़ा थोड़ा करके सही कर रही थी, जो एक सर्टेन टाइम के बाद हिट करता है। ठीक है, तो इसको मैं इस तरीके से देखता हूँ कि अगर कोई बंदा मेरे पास ऐसे आके बोलता है कि मैं क्या करूँ, तो मे बी यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन समथिंग एंड ट्राई टू सेल इट स्लोली एंड ग्रेजुअली। ठीक है, क्योंकि ये बात तो क्लियर है कि अगर कोई बंदा आपको जॉब दे रहा है इंटरनेशनली, ठीक है, तो आपके अंदर वो कोई ऐसी जरूर चीज देख रहा है जो उसको लगता है कि आप पे टाइम और पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, मुझे ऐसा लगता है कि द वे ऑफ लर्निंग जो इंसान के अंदर होनी चाहिए ना, कि यस, जैसा अभी आपने बोला कि आप सीनियर एज अ सीनियर काम कर रही थी, बट देर इज नो हार्म, क्योंकि जब आप स्विच करते हैं, ठीक है, तो आप इंडस्ट्री स्विच करते हैं, तो आप वहां के हिसाब से सीनियर नहीं होते। बिल्कुल। अपेरेंटली तो मुझे मुझे तो ऐसा लगता है पाकिस्तान में सीनियर भी सीनियर नहीं होते, वो सिर्फ कहने को होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई हिरारकी फॉलो ही नहीं होती। मैं ऐसी प्रोफाइल्स देखता हूँ जो 2 साल काम करके टीम लीड बने हुए होते हैं, और मैंने ऐसी प्रोफाइल्स भी देखी होती है जो 10 साल काम करते हैं और वो अपने आप को सीनियर कह रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई हिरारकी फॉलो नहीं होती। नॉट सिलिकॉन वैली का आपको पता है कि सेट नंबर ऑफ आवर्स या सेट नंबर ऑफ ईयर्स के बाद आपका एक्सपीरियंस ही हो जाएगा। ठीक है, अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताओ कि मैं इसको लक नहीं कहूंगा। ठीक है, आप आपने जैसे कहा ना अभी कॉल के स्टार्ट में कि मैं तो सिर्फ अप्लाई करा और मुझे आ गई। ठीक है, थोड़ा सा बताओ प्रोसेस कि क्या करा आपने, और आपको क्या लगता है कि आप क्या सही कर रही थी जिसकी वजह से उनको ऐसा लगा कि हुरैन इज द राइट फिट फॉर द कंपनी। So obviously it was not just luck because I think I started applying for any and every job related to design um, from August, maybe from July onwards, 2020. And then July से लेके October, August तक, I didn't have any revert back. There was not even rejections just by on all the platforms that we work and apply in Dubai. जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन सबको मैं पाकिस्तान से अप्लाई कर रही थी. इट वाज मोर ऑफ अ रेफरल फ्रॉम अ फ्रेंड जिस जो एचआर थे मेरी कंपनी के, जिन्होंने मुझे हायर किया. ही वाज वन ऑफ द alumni from her university, and she, when she saw the job post in her WhatsApp group, she just forwarded my CV. When I got on a call with him, they were very specific that yes, it's work from home, but we need somebody who is there to be on ground in Dubai and can take care of everything that we are working with. And Man City was a big brand for them. So they couldn't even think and What's the hire what's the anybody. what's the company name, by the way? So sorry. It was called the Aries Group, and they work for Man City Challenge. Okay. That's one of their entertainment arena Okay. that they manage. Okay. So it was in Abu Dhabi, और जब उन्होंने मुझे hire किया, तो it was not just one way of, oh, we like your work. They've seen my portfolio. I remember having a call with their marketing manager to just for her to understand my portfolio. There was F&B, there was corporate, there was a lot of things. And then she gave me a test, which I remember कि पाकिस्तान में जब, even in Dubai now, when we get a test, we are very um,
पहले मैं ऐसा नहीं सोचती थी, लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि when you're giving somebody a test, it should be a little bit realistic and not get everything done from a test and then use them. So that's not the right way to do it. When I got my test for the first time, it was not an easy test. They asked me to curate a design for social media posts for a certain brand that they had. They also gave me an option to do either this or work on a different brand and work on billboards. What I did was I did all the three tasks that they. So rather than doing one thing, she told me, you take your time, that's not a problem. Get us this all back in a week. You can choose whatever one you want to do. Hmm. And I thought maybe why not I show them all three brands so that they know the amount of work I can do on different industry of brands. So one was a VR brand, one was a F&B candy dessert company, and one was I think more like football related so that they know how much I can work. So my test was a very big step forward. If I didn't do the test right, अगर उसको समझ भी नहीं आता तो वो आगे शायद बात भी ना करते, because they were very actively looking for a lot of people. I remember also knowing that, oh, we have a call with another designer. We have shortlisted a few, so we'll see what we can do. And I didn't even get an answer back in for like a month and a half after I submitted my test. But even after I submitted my test, I had a meeting with different one of their managing directors who wanted to understand why I did what I did. So it's not just luck, it was how I designed things, how I understood their perspective, because उन्होंने obviously एक brief दी हुई है. You have to understand what they're asking you. It's not just, okay, this is a VR brand, you have to create 5 posts. No. You need to be, they wanted somebody who is smart with words, who can work without giving them everything. So they were checking everything in that test. And that's what I realized when I joined the company. So it's obviously you need to work very hard. My portfolio, which I was working on when I was working in the agency, helped me a lot to get to this point, and then I never stopped learning. I still take courses, I still go to workshops, and I'm still building things to move forward. Perfect. I So have switched, I yeah, like the idea of you saying कि don't take a test very lightly. no, it's You very should important. you should give the 100% for yourself, because मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है आप आपको ये जरूर पता होना चाहिए being a designer. First of all, I don't say designer is a designer. I say designer is a problem solver. There is a problem and you are just solving it Very with the medium called design. ठीक है. माई सेल्फ सेम, मैं कोई डिज़ाइन या मोशन डिज़ाइनर नहीं हूँ. आई एम जस्ट अ मल्टी डिसिप्लिनरी डिज़ाइनर. मैं कोई भी आप प्रॉब्लम देंगे तो उसमें जो भी मीडियम बेहतर होगा मैं उसके हिसाब से उसको सॉल्व कर दूंगा. सही है. सबसे पहले तो आपको अपने आप को सेल करना चाहिए, तो ये तो सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है जो आपने बताई कि दिस इज़ वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू सेल योर डिज़ाइन. ठीक है. इफ़ यू कैंट सेल योर सेल्फ तो फिर आप ऑब्वियस ही बात है आप कैसे किसी भी तरीके से ये बता पाएंगे कि नहीं यार ये जो चीज़ है मेरी, ये जो आपको मैं बता बना रही हूँ या आपके लिए जो भी चीज़ है, ठीक है, वो and काम की also है. the to understand how important that opportunity is for you. हम अक्सर सोचते हैं उन्होंने टेस्ट दिया है, इतना कुछ मांग लिया है, इट्स बेटर आई डोंट डू इट, देन यू आर नॉट इवन प्रायोरिटाइजिंग दैट अपॉर्चुनिटी दैट यू आर गेटिंग. सो यू नीड टू बी वेरी. आई थिंक ये वाला केस पाकिस्तान में जब जॉब्स आती तब होता है. और मेंटालिटी शिफ्ट्स, आई पर्सनली बिलीव आप जॉब पे रहते हुए इंटरव्यू देते हैं आप अलग एटीट्यूड में देते हैं. आप जॉबलेस होकर इंटरव्यू देते हैं बहुत अलग एटीट्यूड में देते हैं. बिल्कुल. आप पाकिस्तान में रह के दुबई के लिए इंटरव्यू देते हैं बहुत अलग उसमें देते हैं. आप दुबई में रह के यूएई के लिए इंटरव्यू, यूएस के लिए इंटरव्यू देते हैं आप बहुत अलग तरीके से देते हैं. ठीक है. बिल्कुल. अच्छा, एक और बड़ी चीज होती है इंपॉर्टेंट कि लोगों को यही पता नहीं होता कि मैं कितने बड़े होराइजन के लिए काम कर रहा हूँ. ठीक है. अल्लाह ताला जरूरी नहीं है, मैं इसको इस तरीके से देता हूँ कि अल्लाह ताला अगर आपको 10 लोगों की टीम से स्टार्ट करे, जरूरी नहीं आप जिंदगी भर 10 लोगों की टीम में काम करेंगे.
और अगर ज़िंदगी भर 10 लोगों की टीम में काम नहीं करेंगे तो अपना एटीट्यूड भी 10 लोगों की टीम वाला नहीं रखना होता। जब आप 10 लोगों में काम कर रहे होते हैं, आपका वर्क एथिक्स, आपका बोलने का तरीका, आपका काम करने का तरीका 10 लोगों में काम करने जैसा होता है। लेकिन जब आप 1000 लोगों की टीम में काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आपका बोलने का तरीका और सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सही। सेकंड थिंग दैट आई वांटेड टू नो कि सही है, आपने टेस्ट बना दिया, उनको अच्छा लगा, ऑल गुड टू गो। शिफ्टिंग करियर, मतलब फ्रॉम मूविंग फ्रॉम पाकिस्तान टू यूएई, सही है, आपको क्या लगता है कि क्या मेन डिफरेंस होता है इंडस्ट्री के अंदर? ठीक है, क्योंकि ठीक है, टेस्ट बनाने तक तो सब कुछ आपके हाथ में, आपको जो अच्छा हम्म। लग रहा है आप बना रहे हैं, ठीक है। बट रियल लाइफ इन्वायरमेंट में काम करना इज वेरी डिफरेंट। ठीक है, लैंग्वेज बैरियर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट, हम्म। रिसर्च, ठीक है, और इन सब के बाद आपको अपनी ओवरऑल जो लाइफ है उसको पैक करना है बैग के अंदर और आपको वहां मूव करना है। ठीक है। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस मूविंग फ्रॉम पाकिस्तान टू यूएई? व्हाट आर द की स्टेप्स दैट यू थिंक यार लोगों को इन चीज़ों को सॉर्ट करना चाहिए? व्हाट आई पर्सनली बिलीव, आप अच्छा काम तभी कर सकते हैं जब आपका पर्सनल गोल सेट होंगे कि ठीक है मैं रह कहाँ रही हूँ, हम्म। मैं काम क्या कर रही हूँ। ठीक है, कभी कभार ना लोग इस, क्योंकि यू हैव टू गिव योर मोर देन 100% व्हेन यू जॉइन अ कंपनी। ठीक है। या। और यूएई का मसला ये है कि यूएई में ना इट्स ओनली वन वे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप जाएंगे और आपको जॉब से निकाल, आप जॉब से निकलेंगे, आपकी एमरेट आईडी खत्म हो गया, आप वापस आएंगे। ठीक है। और आप वैसे ही इतना कुछ देख चुके होते हैं पाकिस्तान में, तो आप उसको प्रेशर कर लेते हैं बहुत सारा। मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा टाइम लगा के अपने आप को टाइम दें और चीज़ों को मैनेज करना चाहिए। चीज़ें आपकी जितनी सॉर्टेड होंगी, आप उतने अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। बिकॉज इट्स नॉट ओनली अबाउट गेटिंग योर जॉब और गेटिंग योर वे आर यू लिविंग। ठीक है, इट्स अबाउट ट्रांसपोर्टेशन कि आप कहाँ से कहाँ जाएंगे। बिल्कुल। एवरी थिंग द डे यू लैंड इन एनी कंट्री आउटसाइड पाकिस्तान, आप अकेले हर चीज नहीं होती है। फिर वो सिम लेना हो, वो कोई भी चीज करनी हो, ईच एंड एवरीथिंग इज न्यू। व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस व्हेन यू मूव फ्रॉम पाकिस्तान टू यूएई? आई एम अज्यूमिंग आपके लिए थोड़ा सा बेहतर होगा क्योंकि यू वर इन सऊदी, तो आप पहले से उस चीज को देखते हुए आ रही थी। बट आपको क्या लगता है, बीइंग एज अ गर्ल, क्या प्रॉब्लम्स या क्या सॉल्यूशंस होने चाहिए जो आते हैं आपको? Uh, so one thing was not a barrier was the language for me. Yeah, because I lived in Saudi, I would understand a lot of Arabic, and Dubai culture is not that Arabic centric. तो अब ये तो एक बहुत major अब तो अरबी भी उर्दू बोलने लगते हैं। तो बिल्कुल ये बहुत बड़ा एक मेरे लिए एडवांटेज था that I could understand if I face that. बट हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत अनरियलिस्टिक होती हैं in terms of when we're talking about Dubai, we're not talking about US or UK. We're talking about UAE, which is very close to Pakistan, and we come a lot on vacations. ये नॉर्मल बात होती है, हम पाकिस्तान से बहुत लोग आते हैं एंड घूम के जाते हैं, बट when you come for a visit and when you come to live is a very different experience. I thought I knew everything about Dubai because we used to come so much. But when I landed here as a person who has to work, it was a totally different experience. Rehna kahan hai? Again, as you said, transport was a big issue because when you move from Pakistan to Dubai, the currency changes. I had a job, but obviously it was not like the cash was very liquid. बस आप टैक्सियों में जाएं और सब करें. When you come here, you realize how much the expense increase if you start going in taxis everywhere. You cannot choose in the start, obviously, you cannot choose luxury over feasibility, I would say. I wouldn't go for a taxi if I can with the metro. And Dubai is very much connected in terms of transportations, but you need to learn those ways. It took me so much time, and I think till today, after 2 years of living here, I'm still learning. So it's ये बहुत बड़ा major problem होता है. And then a place to live. I remember when I came here, um, I asked somebody who I knew, can you please get me a place to stay? उन्होंने जो मुझे This was a very big shock for me. I got a 2-day hotel from the company, but third day I had to move wherever. तो जो मुझे वो रूम मिला था, that was in a partition in a sharing apartment.
And the moment I entered that apartment, because I didn't see it before booking it, because I trusted that person जो book कर रहे थे मेरे लिए कि उन्होंने देख लिया होगा और सब कुछ सही होगा. I gave my deposit and it was a big chunk of what I got from Pakistan. When I entered that apartment, it was a shock that, oh, how can we live in this position? How can I manage? Being a girl has limitations, and I had limitations of being a Muslim as well. I have obviously my values that I think differently than others, obviously, but uh, for me that was a very big shock. I did never got the money back, and I had to leave that place because there was no way I could stay there. But then I had to choose my battles. I had to leave from there. There was a very dear friend who offered us a room. Okay, fine, you can stay there with us. And then obviously, किसी के पास आप रहते हैं तो कोई कुछ भी मुफ्त में नहीं करता. You need to realize that. So if you're coming here, you need to know and have your savings in hand. Very, very important. Do not trust anybody in terms of people will stand for you and do and help you in any way. I've come across people who I've known for years, but there was nobody when I was here to struggle. Mm. So be very self-sufficient. You need to push yourself. आपको आगे बढ़ना है, आपने देखना है, आपने सीखना है, and just be very open to adjusting. In terms of work culture and the industry that I moved from, Karachi se Dubai आना, the expectations were very different. My work from the old agency till now, जब मैं दुबई आई हूँ तो वो बहुत different था. Their way of working was very different. I was working behind the screen in Pakistan. Here, I was on ground with the team. I was working with the operations directly. I was working with the managers directly. I was working with the official teams directly. That was a very big change. अभी तक मैंने कभी अपना डिजाइन कोई बना हुआ इन स्टोर कभी देखा ही नहीं था इन वेन्यू इतना बड़ा. So when I got to see the first time I did a hoarding in a mall, it was a very big thing. And then you realize कि आप ओ जो आप काम कर रहे हैं वो लाइव है. Mm. So that's a it gives you a very big boost. But yes, the struggles are never ending until unless you come into that phase where you have a place to stay. You need to be very set on your goals. My goal was I need to get an apartment for myself. And that's what I work for, to be honest. You need to set very realistic goals. I understand and I know people जिनके लिए ये चीज बहुत बड़ी है. You know, and I would like to tell this to everybody. When you move the first day in Dubai, you cannot get an apartment. You have to get your Emirates ID done. You have to get, there are so many things that comes with getting an apartment. And then people don't realize this. I didn't realize it. मैं पाकिस्तान में रहती थी तो मुझे लगता था मैं यहाँ आऊंगी एक दिन अपार्टमेंट ढूंढूंगी कल रहना शुरू कर दूंगी. But ऐसा नहीं है. You have to work your ways out. You need a lot of savings. You need to find places and then you will eventually succeed. But it takes time. It's not everything will not happen in a day. You need to Perfect. come with a very open mind. Perfect. Moving forward, the next thing that I wanted to discuss is um, now you shifted from design to social media and design executive. I'm assuming that you are more into social now. Okay, you are designing, but designing is not the major part. Okay. Yeah. How was the क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि I personally believe getting a job is the easiest way. Retaining the job is the most crucial thing. ठीक है. You work for quite some time in your first agency when you moved to UAE, and now where you're working is different one. ठीक है. So how was the experience switching from one job to another job? ठीक है. And why do you think? Because you've been doing design for almost like 5 plus years. ठीक है. Um, yes, I don't say कि कौन senior है कौन junior, but detail of work and your niche is very different. ठीक है. जब आप
किसी ऐसे ब्रांड के लिए काम कर रहे होते हैं जिनकी जिनके प्रिंट मटेरियल लग रहे होते हैं, आपका डिज़ाइन प्रिंट रेडी होता है, ठीक है? Mhm. वो दिखता है आपके काम में, सही है। आई एम नॉट सेइंग कि एवरी डिज़ाइन लुक शुड लुक लाइक सैमसंग और अमेज़न लेवल, ठीक है? बट दैट्स आल्सो रिक्वायरमेंट, ठीक है? बट आप डिज़ाइन में थी पिछले 5 साल से, एंड व्हाटएवर मीडियम दैट यू आर वर्किंग ऑन, आपको पता था कि यार ये किस तरीके से होता है। बट एट व्हाट टाइम डू यू रियलाइज़ कि नहीं यार, जॉब तो चेंज करनी ही करनी है, लेकिन मैं सोशल मीडिया की तरफ जाऊँगी, ठीक है? क्योंकि जब आप 5 साल लगा लेते हैं तो आप कहते हो कि ठीक है यार, एक चीज़ सही चल रही है, आप यू नो द इन एंड आउट्स, ठीक है? सो व्हाट व्हाट टाइम यू रियलाइज कि नहीं यार, सोशल मीडिया इज समथिंग दैट आई शुड लर्न और दैट आई वांटेड टू एक्सप्लोर इन दैट, व्हाई इज दैट सो? Yeah. So even जो मेरी पहली जॉब थी कराची में, I was as working as a designer, but the team that I was working with would push me to do social calendar कभी कभी, once in a blue moon, चलो, when मतलब they had a lot पाकिस्तान, of work. मतलब पाकिस्तान में जो चीज़ बुरी होती है वो आपको यहाँ पे काम आ गई, ठीक है? बिल्कुल द मेन रीजन ऑफ आस्किंग दिस इज टू, जहाँ पे लोग ये कहते हैं ना पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में एक एम्प्लॉयर को हर चीज़ चाहिए, अगर आप तो थोड़े से ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे देखें, उसमें कुछ गलतियां एम्प्लॉय की भी और कुछ गलतियां एम्प्लॉयर की भी। एम्प्लॉय की गलती बिल्कुल ये है, देखें, एम्प्लॉयर अगर आप अगर पोजीशन पे लिख रहा है कि आई वांट समवन इन 50,000 रुपीज हु कैन ड्राइव अ कार, प्ले क्रिकेट एंड प्ले रग्बी एज वेल, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर इज अ पर्सन जिसने उसको ये होप दिलाई है कि ऐसा बंदा मिल जाएगा, ठीक I है? was that, ठीक है, वो वाले लोग ना. सही है। अब इसमें होता यह है कि जर्नलिस्ट और बीइंग जैक, सो बेसिकली जर्नलिस्ट और मास्टर ऑफ वन में फर्क यही होता है कि आपको अपना वे फॉरवर्ड देखना होता है। बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ योर करियर जर्नलिस्ट इज गुड, ठीक है? अब मुझे ऐसा लगता है कि वो जर्नलिस्ट वाला जो फेज आपने फर्स्ट टाइम पे गुजारा है कि ठीक है मैं ये भी कर लेती हूँ, क्योंकि ना हर बंदे की अलग मेंटेलिटी है। मैं अगर 100 लोग हायर बिल्कुल करूंगा, उसमें से 50 कहेंगे कि नहीं ये तो मेरा काम नहीं, लेकिन 50 वो होंगे जो वो खुशी खुशी बोलेंगे ठीक है हम कर लेते हैं, ठीक है? और उनका कोई ये माइंडसेट नहीं होगा कि हम इसको लर्निंग के लिए करेंगे, उनको पता है कि जॉब है, करनी करनी है, निकल जाएंगे तो कहाँ बिल्कुल जाएंगे, ठीक है? ऐसे ही. बट आई थिंक वो आपको ओवर द टाइम फ्रेम ना ये हेल्प आउट करता है कि यार ठीक है, मैं ये आहिस्ता आहिस्ता चीजें सीख रही हूँ, क्योंकि डिजाइनर, आई पर्सनली बिलीव, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि उसका फाइनल आउटपुट लगेगा कहाँ पे, ठीक है? बेशक वो प्रिंट हो, बेशक वो डिजिटल हो, बेशक वो एड्स हो, बेशक वो लीड जनरेशन हो, अगर आपको यही नहीं पता कि वो डिजाइन की डिजाइन साइकिल कैसी है या उसकी क्या हायरार्की है, वो किस पैटर्न में लगा, फनल की किस जगह पे लग रहा है वो, ठीक है? टॉप ऑफ द फनल है, मिड ऑफ द फनल है, एंड ऑफ द फनल है, क्या वो फेसबुक ऐड है, क्या वो गूगल ऐड है, क्या वो प्रिंट मीडिया का ऐड है, क्या वो किस स्टिकर है, उसका पर्पस क्या, जब तक नहीं पता चलेगा, ठीक है? ओके, सो यू आर डूइंग दिस सोशल मीडिया ऑन योर फर्स्ट जॉब, ठीक है? Yeah, बट so once in a blue moon, but ओके, most maximum my job was to design calendars and obviously website design in venue designs. But kabhi kabhi once in a blue moon they would ask me if you can do it, I would do it. So that, because I wanted to learn, I had we had more designers. I was not the only designer, but none of them wanted to do this. So I was the only one who would take this. Okay, fine, kar lete hain. But when I moved to Dubai, I was again hired only as a designer. When I was hired, there was another person who was hired. वो social media exec के लिए hire हुए थे, plus content creation. मैंने join किया Feb में, he was also hired, the same timelines, and he left in March. Feb में मैं join किया in Dubai on ground, and he left in March. So because they were already looking for people, I pushed my manager, because जब आप आए होते हैं तो आप बहुत ambitious भी होते हैं, and then obviously the salary bracket that I was getting, I wanted to push it a little bit, because that's what they told me, that your probation, once your probation ends, we'll rework and re discuss this. I started pushing my manager that let me try doing social media. And she was like, I would be very happy कि अगर मैं internally hire कर लूँ rather than मुझे externally hire कर. So I can क्योंकि easily promote you क्योंकि उनके rather पैसे, than. क्योंकि उनके पैसे बचेंगे, और क्योंकि वो बिल्कुल बिल्कुल. अब मुझे ऐसा लगता है And कि आप जब ये मैथ समझ लेते हैं ना,
ठीक है। इन योर केस आई डोंट सी कि आपने बुरा करा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि थिंक इट लाइक दिस वे कि जितने, उसको पता नहीं कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, उड़ते हुए तीर आप जो ले रहे होते हैं, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए कि ठीक है यार, कब मुझे करना है ये और कब नहीं करना। बिल्कुल इस बिल्कुल। आपको, मुझे बाउंड्रीज ऐसा बहुत लगता है, जरूरी हाँ, आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना अपना रीसेट बटन दबा कर आना चाहिए जब भी आप मुल्क चेंज करते हैं। है। ठीक है, और बिल्कुल आप वहां पे बिल्कुल वही तरीके से काम करें जैसे एक जूनियर एक एग्जीक्यूटिव काम कर रहा होता है। ठीक बिल्कुल। है, क्योंकि इससे दो फायदे होते हैं, आपको मार्केट का पता करने के लिए आपको मार्केट में जाना पड़ता है। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल इससे दो मीडियम खुल जाते हैं कि कल को आप डिजाइन भी देख सकते हैं और सोशल मीडिया भी देख सकते हैं। तो एक तो ये तो सबसे अच्छी चीज है कि आपने करा, और यस इट मेक्स बिजनेस लेवल पे भी सेंस बनती है कि यार मैं वापस से पोजीशन डालूंगा, फिर बिल्कुल। बंदों के इंटरव्यू लूंगा एंड वाइस वर्सा, व्हाई नॉट आई हायर यू। हम्म। ओके, सो यू सेड कि ठीक है मैं अवेलेबल हूँ, मैं तो आपको मैंने सोशल उससे मीडिया का बोला रिलेटेड। एंड देन um 2 महीने के लिए आई डिड दैट जॉब बिकॉज दे वर फाइंडिंग ऑब्वियसली दे वर लुकिंग फॉर द ब्रांड वाज वेरी सेंसिटिव वी कुडंट डू दैट तो हमारे लिए बहुत जरूरी था टू हैव अ सर्टेन पर्सन फॉर दिस जॉब they hired somebody after 2 months but that manager that I had उसको पता चल गया कि मेरी कैपेसिटी क्या है और कैपेबिलिटी क्या है आई स्टार्ट वर्किंग फॉर पीआर विद देम मैं इन्फ्लुएंसर्स को मैनेज उसी वक्त से कर रही थी because they thought कि I was doing a good job and then they did give me a bump because of that PR part that I was doing. Social media was somebody else's job. I was not doing that. I was only doing design and PR. But when she found out कि मेरे पास capability है to do social media, I can work on strategies. I have big ideas that, and I can execute them. Later on, she resigned from that job. But we started working on freelance base. So I was not just working at my job, I was always working freelance, some project or another. I've worked with big brands, I've worked with Amazon for a few of their projects, not just design, also a little bit of strategies. So it's where you want to show. मैंने वहां पे उसको दिखाया उसने छोड़ तो दी वो जगह but she knew. And then when I came to this job, she was the one who referred me. तो ये बहुत मतलब एक बंदे के लिए आप अपने आप को पुश करते हैं and you never know what connects you to what. दिस इज Then हाउ दिस now इज when आई थिंक दिस इज हाउ रेफरल्स वर्क ना, कि आपको यू नेवर नो कि अभी आप जो काम कर रहे हैं वो, क्योंकि नॉट एवरीवन विल रिमेन ऑन द सेम पोजीशन। ठीक true, है, sometime your junior become your senior, sometime your yeah, seniors become your junior, and then you need to realize कि it's have a healthy community of your surrounding। ठीक है, उसमें आपके बहुत सारे फायदे होते हैं, कभी कभार आपको अपने काम में आसानी होती है, पर्सनल लाइफ में mm, चीज़ें आसान हो जाती हैं, जॉब वाइज चीज़ें आसान हो जाती हैं। द लास्ट थिंग दैट आई वांटेड टू डिस्कस रैन इज, सो यू बीइंग इन यूएई फॉर अ ईयर, ठीक है, तो थोड़ा सा रियलिस्टिक बात करते हैं। How do you think, or how do you advise someone to manage their finance when they are moving to UAE, and what should be a decent salary that they should look? Because what I mm, think कि इसके बारे में ना कोई बात नहीं कर रहा होता। ठीक है, mm, बिकॉज जैसे सक्सेस की डेफिनेशन हर बंदे की अलग है, वैसी सैलरी का कैप हर बंदे के लिए अलग है। किसी बिल्कुल। के लिए कोई सैलरी सही है, किसी के लिए कोई सैलरी सही है, बट उसका एक ना ड्यू डिलिजेंस होनी चाहिए कि at least this is my expense should look like। ठीक है, so you being in UAE for a year now, आपको क्या लगता है अगर आप एक किसी बंदे Um, को फाइनेंस हेड बनाओगे तो उसके अंदर प्रायोरिटी वन, प्रायोरिटी थ्री के हिसाब से क्या एक सैलरी इंसान को देखनी चाहिए कि जिस पे वो आए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वो 6-7 लाख पर, 5-6 लाख पर पाकिस्तान में होता है। मुझे ऐसा लगता है जो 5-6 लाख पर है वो यहाँ ना आए। ठीक है, वो वैसी बहुत अच्छी बिल्कुल। जगह है, उसको घर वो में वो, लाइफस्टाइल हाँ, बेहतर है पाकिस्तान में जो यहाँ पे मतलब, 5-6 लाख का हो। हाँ मतलब उसको उसको घर की रोटियां मिल रही हैं, उसको बाहर नहीं जाना, उसको हम्म। पार्टीशन में नहीं रहना पड़ेगा, हम्म। उसको कपड़े खुद नहीं धोने पड़ेंगे, उसको बर्तन खुद नहीं बिल्कुल। धोने पड़ेंगे। लेकिन रियलिटी डिफरेंट है। अब जब आप एक साल से, आपको क्या लगता है कि आप किस तरीके से एक फाइनेंस चार्ट बना के दोगे, क्या इस तरीके से आपको डिवाइड करके अपनी सैलरी देखनी चाहिए? सी अगेन आई एग्री विद व्हाट यू सेड कि आप अगर किसी बंदे को 5-6 लाख पाकिस्तान
लेकिन टू कीप दिस ऑल्सो इन माइंड कि हम भी इंसान है, अगर हमें 5-6 लाख मिलेंगे तो वो हम 5-6 लाख को आग लगाना जानते हैं. तो इफ यू आर मैनेजिंग योर फाइनेंसेस इन अ वेरी स्मार्ट वे इवन बीइंग इन पाकिस्तान, तो आपको आने की बिल्कुल गुड, इट्स अ गुड अमाउंट टू टेक केयर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स. क्योंकि सबसे मेजर जो एक्सपेंस दुबई में है, दैट इज, दैट्स व्हाट आई थिंक, रेंटल payments are, for me it is कि मेरा major chunk of salary goes into my, and It's for everyone. Rental is for I, every. yes I am sure. और वो monthly नहीं है हर जगह, वो quarterly होता है, कभी वो yearly भी होता है, मतलब वो depends yearly. on how. It is yearly. So officially it is yearly when you are renting an Yeah, apartment. It is yearly, but then you need to realize कि वो post dated checks होते हैं. ठीक बिल्कुल है. पोस्ट डेटेड चेक्स आर अ मेजर, मतलब मुझे तो उसकी एंजाइटी रहती है कि अभी चेक की डेट आने वाली है. आर यू सेविंग इट इनफ, आर यू स्मार्ट इनफ, क्योंकि पैसा हाथ में होना और खर्च करने में बहुत आसान. इट्स नॉट दैट इजी टू सेव, एंड बीइंग इन दुबई इट्स अ वेरी बिग, वेयर यू सी सेल्स ऑल द टाइम, वेयर यू आर बीइंग पुश्ड इंस्टॉलमेंट करा लें. हर चीज की इंस्टॉलमेंट हमें इतनी This is अवेलेबल है. नहीं. This is not what. इसमें मैं दुबई को गलत नहीं कहता. ठीक है. मैं इसमें आ, हमारी मेंटालिटी एवरीथिंग को इज गलत इजी. हमारी मेंटालिटी को गलत बिल्कुल. कहता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है. पूरी दुनिया में इसी तरीके से ही सेल्स लगती हैं. ठीक है. देखिए हमने अच्छा. सीखा नहीं ना, हमने कराची में रहते हुए, असल में वो पाकिस्तान में रहते हुए. हाँ, वही वाली बात होती है, क्योंकि हमारे यहाँ जो अल्टीमेट गोल होता है वो ये था कि जिस दिन मैं आईफोन ले लूंगा ना, उस दिन मैं खुद बन जाऊंगा. बट जिस दिन आप यहाँ तो आईफोन आप अगले दिन ले लेंगे. हाँ, लेकिन जिस दिन आप आईफोन ले लेते हैं, ठीक है, अगर मैं लेमन टर्म से बताऊं, जिस दिन आप आईफोन ले लेते हैं उस दिन आपको पता चलता है कि इससे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता. बिल्कुल ऐसे ही है. तो ठीक है. हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत रियलिस्टिक होने की जरूरत है. एंड फाइनेंशियली, अगेन यू नीड टू रियलाइज, नॉट योर फर्स्ट जॉब विल बी योर लास्ट जॉब. पहली जॉब हमेशा स्टेपिंग स्टोन होता है. फॉर मी इट वाज, आई डिडंट हैव अ ग्रेट सैलरी व्हेन आई मूव्ड हियर. दैट वाज अ स्टेपिंग स्टोन फॉर मी, बट मुझे ये पता था कि मेहनत आप कर रहे हैं, that is not going to go in vain. अगर आप मेहनत कर रहे हैं, you know how to sell yourself. Again, you need to sell yourself. You need to be very consistent and disciplined in what you do. पैसे खर्च करना बहुत आसान है, उसको सेव करना बहुत मुश्किल है. Coming here, you need to have a big chunk of savings. Again, your rentals will take time. आपका अपना apartment होने में भी time लगेगा. Need to be very adjusting in that fact. Living cost, major cost सिर्फ और सिर्फ rentals हैं मेरे हिसाब से. Your transportation is not that expensive, very accessible. Food cost is also not that big. Again, your lifestyle. अगर आप किसी की salary in numbers बात करते हैं, तो I would suggest कि if you're only one person, तो stepping stone can be your 8 to 9K if you're coming for the first time. अगर आपको ये जॉब इतने पैसों में मिलती है तो टेक दैट. इट विल टेक टाइम बट यू विल गेट अ बेटर जॉब. जॉब पे रहते हुए जॉब ढूंढना आसान है, ना कि ये सोच के रिजेक्ट करना कि ओ इतने में तो नहीं होगा. सो आई थिंक टेक इट एंड देन मूव फॉरवर्ड एंड देन प्लान फॉरवर्ड. With family, obviously things change. If you're living just two people, the cost can be a 3, 4, 5K more depending on आपकी living situations. If you have kids, then obviously the whole perspective changes. उसके expenses अलग हैं, सब चीजें अलग हैं. So being a single person, I think 8 to 9 is good to start with. I think it's a fair enough thing जो आपने बताया. It's a very well thought out. क्योंकि in Pakistan mentality of getting salary raise is just like कि मैं 2 लाख मिल रहे हैं, मुझे 2.5 लाख मिलेंगे, मैं स्विच कर लूंगा. ऐसा ठीक है, है. ये बहुत रियलिस्टिक है. बट मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान में अगर मैं बड़ा चंक निकालता हूँ तो पाकिस्तान में आप यू कैन स्टिल अर्निंग 2 लाख रुपीज एंड सेविंग 50,000 रुपीज. ठीक बिल्कुल. है. बट इन यूएई द मेन क्रक्स ऑफ इट कि आप यूएई में कितना भी पैसे कमाएंगे, यूएई आपसे सब लेके जाता है. ठीक है. आप 1,000 कमाएं या आप 1 लाख दरम कमाएं. ठीक है. बिकॉज वंस यू गेट टू अ पॉइंट आपको अपने आप पे भी मेंटेन रखना पड़ेगा. ठीक है. बिल्कुल एंड बहुत इट्स एंड मुश्किल इट्स है एंड जो इट्स कि. नॉट एंड इट्स नॉट बैड. ठीक है.
Yeah, अगर मैं रियलिस्टिकली बताऊं, बीइंग इन यूएई फॉर couple of years now, it's not about spending the amount, it's spending on the right thing at the right time. You can get things from 10 dirhams और वही चीज सेम चीज आपको 100 dirham की भी मिल सकती है. बिल्कुल, इट वर्क्स इन द सेम वे लाइक पाकिस्तान में. थोड़ा सा अपने आप बिल्कुल, को अगर टाइम दें, एक्सप्लोर करेंगे ना, तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी. ठीक है. बिल्कुल ऐसे ही है। और आहिस्ता 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 स्लोली आप हर चीज़ सीख सकते हैं. ठीक है. बिल्कुल, नो वन इज से टू हैव योर अपार्टमेंट इन द वेरी फर्स्ट डे, एंड नो वन इज सेइंग, क्योंकि देखिए हर बंदा, जैसा आपने भी एक्सपीरियंस शेयर करा, कि दैट पार्टीशन थिंग गोज टू, कि जब भी आप जहाँ रह रहे हो उसमें एक बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, रोड मैप है, स्लोली एंड बहुत ग्रेजुअली आपने. डिफरेंस है, ऑब्वियसली, ऑब्वियसली बहुत बड़ा टाइम फ्रेम तो है, आपको एंड उसके इट हिसाब टेक्स से टाइम टू। अगर उसके हिसाब से चले, आई थिंक, तो फिर आपको मसला नहीं होता. बट द फर्स्ट सैलरी ब्रैकेट दैट वी हैव सेट, के आप लोगों को ये फायदा हो जाएगा कि हाँ भाई, अगर इतना है तो इसमें आप यू कैन स्टार्ट डूइंग समथिंग. Yes, 100% you can ऑल्दो start. क्या And आप if इसमें. you're, just by the way, if that is for the first person, if you're on a spouse visa and you're looking for a job, I think starting with 6, 7 is also fine. Because you already have your visa, you have a house, you're managing your finances, and then you have somebody to support you. So that's a very big It major chunk depends. It which I say depends. कि थोड़ा It push depends. करें, It but depends. I then you think can obviously switch. not. I think हर बंदे के लिए रिक्वायरमेंट सेम नहीं होती, और हर बंदा एक ही सेम बिल्कुल, एक्सपीरियंस से नहीं गुजर रहा I'm होता, तो sure. आपको जो And बेहतर लगता है वो depending करना on your चाहिए. experience also, this is for people who are very fresh, very starting. ऐसा नहीं सोच सकते हम कि 20 साल का experience है आपका in certain industry where you specialize it and you get a 8, 9K job. No, that's it. It depends on case to case, people to people, and then obviously your requirements and needs. Perfect, perfect. I So, think we have discussed a lot of good pointers. Thank you so much, Varan, for taking out your time and sharing your thank you so experience. पाकिस्तान का भी, यूएई का भी, वो कि किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से आप अपने फाइनेंस को मैनेज करते हैं. बहुत सारे लोगों को बहुत सारे सवालात होते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि यार क्या करना चाहिए. बिकॉज व्हाट आई थिंक बिल्कुल. इज गेटिंग योर जॉब इज वन स्टेप, बट उसको सस्टेन रखने के लिए आपको ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए. सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. जस्ट फॉर द ऑडियंस, वी वांट टू रीच आउट टू Huran, you can reach out to her on LinkedIn. I'm pretty much sure she will be there to help you as well. Thank you so much for your time. It's my pleasure to have you on the session. Thank you.